Our next guest, Mrs. Kanchan Adhikari, has been involved in the creative media for over a decade. During her career in acting, she won the Best Actress Award in the state competition. She acted in the commercial play named Pala Pala Kaun Pude Paleto. She has also acted in a few Hindi serials like Bante Bigarte, Ye Jo Hai Zindagi, Aur Bhi Hain Rahein, Titliyan, etc. Acted in 4 Marathi films as lead role. She was actively involved in Hindi theatre with Mr. Dinesh Thakur. As her directorial debut, she undertook Shri Adhikari Brothers Television Networks Limited serial Damini in Marathi. Damini created history and achieved the highest rating points on Doordarshan. Today, Damini is completing 1500 episodes, which is a record by itself. I request ma'am to please come on the stage, and I request Miss Payal to please come on the stage and felicitate ma'am. 54, yeah. Go ahead. See, this is what happens Wow, when that's you a give great two people start. the chance to speak together. Go ahead, Premraj. Good afternoon and welcome to the special edition. We complete 1 year today, and every Sunday we used to have one guest. And as a special treat, today we have a triple treat. When we were growing up, there used to be a 555 cigarette. Today is our 55th episode, and we have 3 celebrity guests, so 555. That is how it comes. Non-stop 55 Sundays, we have been engaging with people, and some of our guests who have graced our platform are here. Thank you for being here. And this juggernaut is one that is not going to stop. This will keep on going. This is Sunday. Let's take this opportunity to speak to 3 people, achievers in their own right. Now, since Subhash ji is there and he's head of our Dabbawala Association, we will be asking him questions in Hindi. So this will be a multilingual Hindi-English type of question-answer session. Premraj, go ahead. Yeah. Since we have only one lady on the platform, we'll start with you. Ladies first. Yeah, ladies first. Ma'am, just a couple of seconds back when all the ladies got collected, the room was half empty, even more than that. The gender ratio is shifting, totally. Yeah. Okay. Over a period of time, you have worn many hats, whether it's an actor, a director, Yeah. a production house. Yeah. And in the pandemic, we have seen a lot of turmoil happening that would have affected the fraternity. How is it that you have managed this critical period in our industry time? Okay, thank you for the question. First of all, congratulations on completing 1 year, one successful year to the organization Bloom. Thank you. And see, because of that, I'm wearing this floral design. I'm blooming myself. Yeah. Okay, I will say that my introduction was half or maybe 1/4 like you. Because before my marriage, I was an actress, and those days, all the husbands, they never wanted their wives to appear on screen again. So now my marriage has completed 32 years, so go behind 32 years. And after that, my husband is Markan Adhikari, and being from the Adhikari family, and not because of the being from Adhikari family, I have been in this industry past so many years. I have been the announcer and newsreader on Mumbai Doordarshan. Those days, everybody used to have only one channel, and that is Doordarshan. So we have been viewed by many people. वो तभी TRP वगैरह कुछ था नहीं, हम ही थे, हमें ही देखो, मैं हूँ, ऐसे ज़माना था. So like बहुत लोग देखते थे हमें, और रास्ते पर चलते हुए, ये करते हुए भी, तभी मेरे पास कार भी नहीं थी, और मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी कि भाई टेलीविज़न से चेक 6 महीने के बाद निकलता था, और अपने ही पैसों से, बिकॉज माई डैडी टोल्ड मी, मैंने आपको BCom तक सिखा दिया है, नाउ यू अर्न एंड लर्न. सो एक छोटी सी कहानी मेरी भी इसमें जोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने बुक पढ़ा है, एंड विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इंस्पायरिंग बुक. तो एक छोटी सी कहानी मेरी भी है, एक छोटा सा स्ट्रगल मेरा भी है अपनी ज़िंदगी के साथ. बट मैंने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं है, लोग पहचानते हैं, तो लोगों ने पहचानने के लिए ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं. सो वन शुड टेक प्राइड इन दैट. सो एनीवेज,
उसके बाद से जब शादी हो गई तो नेचुरली फिर 1 साल के अंदर मुझे बच्चा हो गया। उन दिनों में बच्चे जल्दी हो जाया करते थे। तभी हमें ये इजाज़त नहीं होती थी कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, तभी हमें ये इजाज़त नहीं होती थी। तभी एक्चुअली शादी का मतलब ही ये होता था कि भाई शादी हुई है तो बच्चा कब हो रहा है, और 2 साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं हुआ। Those were the days. So anyways, no regrets for it. I'm very happy कि मेरा वो चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो गया and I could jump into my another chapter of making myself and concentrating on my career. और मैंने पहला जो वेंचर किया उसके बाद में I told मार्कंड दैट अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं कैमरे के सामने आ जाऊँ, बट मैं कैमरा नहीं छोड़ूंगी, मैं कैमरे के पीछे जाऊँगी। एंड आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग एंड दामिनी वॉज माई फर्स्ट वेंचर, जो पहले एक्चुअली 13 एपिसोड की होने वाली थी, बट जो यहाँ लिखा होता है ना वो किसी का बाप भी नहीं टाल सकता, फिर चाहे हस्बैंड हो, बाप हो या और कोई भी हो, सास ससुर हो। सो विद दैट दामिनी मतलब जो सब्जेक्ट दिया गया था इट वॉज अबाउट द दामिनी वॉज द जर्नलिस्ट, और वहाँ पर से वो सीरियल शुरू हुई थी। एनीवेज उसके बाद से वो ऑटोमेटिकली मुंबई दूरदर्शन से डेली हो गई। सो दैट वॉज मेरे आई एम लकी इनफ कि मेरे नाम के आगे फर्स्ट मराठी डेली सीरियल जोड़ी गई। सो इन माई CV काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरे लिए फर्स्ट मेरे नाम पर है। अनदर थिंग इज दैट कि फिर दामिनी, अच्छा बाय द वे दामिनी के लिए मैंने 24 घंटे नहीं 48 आवर्स नहीं उससे भी ज़्यादा काम किया है एट अ स्टेज। और वो किस लिए किया पता है? जस्ट बिकॉज अगर मैं दामिनी में यहाँ पर मैं फेल रही तो घर पे जाके मेरे को रोटली बनानी पड़ेगी। सॉरी, मुझे रोटली नहीं बनानी थी और मैं चुप बैठ के मन ही मन में अपने से एक सेल्फ टॉक पर बहुत अच्छा लिखा है आपकी बुक में। मैं इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ बिकॉज मैं बुक पढ़ते पढ़ते ना आई कुड रिलेट माई सेल्फ एंड थैंक्स टू पायल बिकॉज शी हैड कम टू माई प्लेस एंड शी हैड गिवन मी द बुक। सो मैंने वो तभी एक ही मेरा गोल रखा कि या तो रोटली या तो फिर कैमरा, सिलेक्ट क्या करना है कांचन तुम्हें। तो मैंने टिक मारी कैमरे पे और मैंने छोड़ा ही नहीं उसको, मैंने बोला छोड़ूंगी ही नहीं। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक बिकॉज मार्कंड अधिकारी को पैसा चाहिए था, पैसा मिल रहा था। चैनल को क्या चाहिए था वो विद्योत्तमा शी नोज, शी वाज विथ अस। सो चैनल को पैसा चाहिए होता है, चैनल को TRP चाहिए होता है, चैनल को अच्छी सीरियल चलनी होते, फिर वो वाइफ बना। बिकॉज मार्कंड अधिकारी कैसे है, विद्योत्तमा नोज कि वो बीवी या कोई ऐसा उसके पास फर्क नहीं होता है, वो सिर्फ आंकड़े देखता है। ही इज़ अ थरो बिजनेसमैन, वो सिर्फ आंकड़े ही देखता है। और सबसे पहले तो मेरे को घर पे बिठा देता था, तो मैंने कहा इतना डट के काम कर कांचन, इतना डट के काम कर कि बस किसी को भी ये बोलता है ना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। सो मैंने वो सोच कर आई स्टार्टेड। एनीवेज कटिंग इट शॉर्ट, then there was no looking back, of course. Then I did so many projects for Mumbai Doordarshan. Afterwards, then there came the zamana of the private channels. Zee was the first private channel, और जहाँ पर कमांडर हमारी पहली आई थी. So that was the Adhikari's ventures. But मेरे भी बहुत सारे वेंचर है। आज मेरा दिन है तो मैं मेरे पर कॉन्सेंट्रेट करूँगी। या प्लीज, मैंने भी बहुत काम किए हैं। So anyways, after that, being Marathi, got married to Guju. So मेरे को पता है कि गुजू के इसमें तो धंधा ही देखा जाता है, और मराठी फालतू में झगड़ा, मी मराठी। So मैंने बोला कोई बात नहीं, यही टाइटल रहेगा, मी मराठी। And I established the channel, and out of which 13 programs I conceived, I produced, I directed. Produced Markand Adhikari tha, directed by me, conceived by me. Out of which 6 programs got many awards. And out of which one program, तभी मैं स्क्रीन पे appear हुई because one show which I conducted, which was its title was दिल खुलास, and it was on socio-economic issues. So बहुत सारे लोग मेरे शो में आके गए थे. I was always surrounded by all the ministers, lawyers, police people, ये वो. So मेरा नाम धीरे धीरे बढ़ता गया. And फिर तो और भी कोई लिमिट नहीं, because मी मराठी ने भी मार्कंड को पैसे दिए. So पैसे नहीं देती थी तो मैं घर पे बैठती थी. मेरे को पता था, मेरे को सबसे पहले तो लात यहीं से पड़ती थी और घर पे बिठा देते थे. सो मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं करना है. सो एनीवेज आई एम द फर्स्ट वुमन. अनदर थिंग इज दैट देयर वाज नो चैनल सॉन्ग दैट टाइम. सो मी, हाँ, थीम सॉन्ग किसी भी चैनल का नहीं था. सो दिस आइडिया वॉज माइन, आई क्रिएटेड. मुझे सबसे पहले ये बात लगी कि कैसे थॉट्स आते हैं. पहले मेरे को ये बात लगी कि हम फिल्म भूल जाते हैं बट हम गाने याद रखते हैं.
सो मैंने कहा कि गाना एक ऐसी चीज़ है कि बट एक बात है कि मैंने मार्कंड को ये चीज़ बताई, ही अप्रूव्ड इट एंड ही सैंक्शनड द बजट फॉर इट एंड मी मराठी सॉन्ग वाज अ मेजर हिट सॉन्ग. You might have heard it or not. I am not a singer, but मी मराठी, मी मराठी, मी मराठी. छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुढ़ा भी यही गाना गा रहा था. एंड दैट्स हाउ माई चैनल बिकम टॉप रैंक चैनल. एंड मेरा पति वैसे भी चैनल बना के उसको बेचने में बहुत उस्ताद है, तो उसने ये भी चैनल बेचा और उससे भी पैसे कमाए. सो एज सब टीवी उसने बेचा सोनी को भी, अब पैसे कमाए. सो बट मैंने एक बार मार्कंड को पूछा, मैंने बोला मैं बाहर जाती हूँ, लोग मेरे को बोल रहे हैं कौन सा नया चैनल है अभी आपका, और उसका आप फिर बाद में कब बेच रहे हो. मैंने बोला है ये क्या सवाल हो गया, कब बेच रहे हो. तो मार्कंड ने बोला तो क्या हो गया, बंदा कपड़े बनाता है बेचता है, कोई प्लास्टिक की बाल्टी बनाता है बेचता है, प्लास्टिक की कुर्सी बनाता है बेचता है, मैं चैनल बना के बेच रहा हूँ. एंड दैट्स हाउ देयर आई रियलाइज येस आई गॉट मैरिड टू गुजू गाय. So anyways, after that, in 2004, मेरे को लोगों ने बोला कि तुम्हारा नाम काफ़ी हो गया है, why don't you venture into मराठी films? Because हिंदी फिल्म्स के लिए बहुत सारा बजट लगता था और उतने पैसे मेरे पास थे नहीं. So I told Markand I wanted to venture into that under the banner of अधिकारी brothers. But मेरे को जवाब आया कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है. तो मैंने कहा ठीक है, no problems. तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर मैं करना चाहूँगी तो तुम्हें कोई आपत्ति है? बोले नहीं. तो मैंने कहा ठीक है, no problems then. मैंने एक चीज़ देखी है कि सबसे पहले आपके पास यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट. फाइनेंस इज नॉट अ बिग इशू, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. तुम्हें तुम्हारा नाम इतना ऊपर लेके जाना है कि फाइनेंस ऑटोमेटिकली आता है. और ऐसे ही हो गया. माई फर्स्ट फिल्म 2004, आई गॉट मानिनी, आई गॉट 18 अवार्ड्स फॉर दैट. सो दैट वॉज माई फर्स्ट वेंचर. उसके बाद से बीच में मी मराठी के लिए मेरे 2-3 साल गए लाइफ के. उसके बाद में 2007, 2008, 2009, 10, every year I used to get my Marathi film, and I have till now I have produced and directed 8 Marathi feature films, and out of which my Mokla Shwas film, which was on the female feticide issue, that has reached to the semi-final for the national award, and I still have that pain that I lost my national award for that. So वो शायद यहाँ नहीं लिखा होगा, whatever may be. So that's my journey, and that's how even I bloomed, yeah. And I'm here. I'm really glad to be here. Now during pandemic, तो सब लोग घर पर ही बैठे हुए थे. So what to do? Then I started writing a book, and I was about to release it on 5th of March, but 23rd March तक तो अपना ये सब लग गया था, तो वो हुआ नहीं. मेरे को 5th March को कोई ये मिला नहीं venue proper. But still, I have sent my book for many this thing. I wrote it in Marathi because I have studied in Marathi medium. It's a vernac medium. जैसे पायल ने लिखा है, पायल योर स्टोरी कि आपको स्पीच डिलीवर करना था और आपको डिलीवर करने नहीं दिया गया. सो कभी भी मैं जहीं कहाँ पर भी जाती हूँ तो लोग, पहले मेरे को बड़ा डर लगता था, इंग्लिश से मेरे को बहुत ही डर लगता था. बट लेट मी मेंशन हियर, मेरा एक फ्रेंड था एंड ही हैड हेल्प मी. सो मैं चुप चुप बैठती थी. बोले तुम चुप चुप क्यों बैठती हो, बाकी तो बहुत बड़बड़ करती हो, मेरे साथ क्यों चुप बैठती हो. मैंने कहा कि बिकॉज मैंने बोला आई एम फ्रॉम वर्नाक मीडियम, और मैंने बोला तुम इंग्लिश मीडियम से हो, तुम बहुत अच्छी फटाफट इंग्लिश बोल देते हो, क्या राइटिंग है तुम्हारी. मैंने बोला मैं कब यहाँ तक पहुँच जाऊँगी. बोला तब पहुँचोगी ना जब यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. सो मैंने बोला कि मैं कुछ भी बोल दूँ, फालतू कुछ भी बोल दूँ तो भी हंसने का नहीं. तो बोला ना मैं नहीं हंसूंगा, लेकिन तुम्हें भी पेन्स लेने पड़ेंगे. सो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग विथ हिम, एंड देन एवरी डे आई यूज्ड टू टेक आउट न्यू 5 वर्ड्स. उसका प्रोनाउंसिएशंस आगे लिखती थी, उसका मीनिंग लिखती थी. एंड दैट्स हाउ इट्स अ लैंग्वेज. लैंग्वेज तो कोई भी सीख सकता है, कोई तमिल तेलुगु भी सीख सकता है यार. क्यों, मतलब इससे डरने वाली क्या बात है. एक तो जिगर होना चाहिए. ये जिगर जो है ना, ये जिगर ही आपको वहाँ तक पहुँचा देता है, नथिंग एल्स. एक इसमें लिखा भी है एक की स्टोरी में, वेयर यू शुड हैव योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस. और हमें यहाँ पर जो भी लेडीज़ है, एवरीबडी हु हैज़ गॉट द अवार्ड, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. एंड सबसे पहले एक बात तो ये है कि कोई भी वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी मैंने ज़िंदगी में किया है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन इन टू इट. एंड जब भी बीइंग द हाउस वाइफ्स, हमें यहाँ पर बुलाया गया, हमारा फ़ोटो निकाला गया, बिकॉज हमने अच्छा हाउस वाइफ भी, मैंने आई हैव बीन अ गुड हाउस वाइफ ऑल्सो. आई हैव गॉट 1 सन. हाँ, घर को कभी देखा नहीं, ऐसे नहीं किया, घर भी देखा एट द सेम टाइम, और करियर भी एट द सेम टाइम रॉकिंग रही मेरी बाय ग्रेस ऑफ गॉड.
बट एक चीज़ ये है कि आज मेरा बेटा हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अधिकारी ब्रदर्स, हिज नेम इज़ कैलाशनाथ अधिकारी एंड ही इज़ लुकिंग आफ्टर आवर मैगजीन कॉल्ड गवर्नेंस नाउ एंड लाइक यू कैन गो ऑन इंस्टा, just type KAILASH NATH Kailashnath ADHIKARI. So he has been interviewing all the big shots, right from Kapil Sibal to Shatrughan Sinha and right everybody, like Visionary Talks and Masterminds करके उसके 2 shows आते हैं. You can go. So ये जो लड़का कर सकता है उसकी मैं माँ हूँ. So I am proud now in that. जो मेरा था, मैंने मेरी इनिंग ज़बरदस्त खेली है. अब मेरे बेटे को उसकी इनिंग खेलनी है. But still अभी भी मेरी 3rd इनिंग अभी शुरू हो रही है. आई एम गेटिंग, पिक्चर अभी बाकी आई एम है। गेटिंग, यस. तो आपने बात करके वो दूरदर्शन की याद दिला दी। या जो ग्रे हेड वाले हैं उन सबको याद होगा। मुझे तो दूरदर्शन के बारे में क्या याद है, आपण याना पायलट का, यस, आमची माती आमची माणसं। यस. बट यू आर नॉट सीन मी. आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट. नो नो नो, मुझे बातम्या याद है, मुझे बातम्या याद है। या और सॉरी फॉर द ब्रेक, कुछ भी ब्रेक होता थी एक आदमी ऐसा लेके सॉरी फॉर द हाँ। ब्रेक खड़ा हो जाता था। और Guard। वो उस टाइम ऐसे कैप्शंस बनाए हुए करते थे, पता है. कैमरा रहता था व्यत्यय। ऐसे, हाँ व्यत्यय। व्यत्यय, ऐसे ऐसे आगे कर देते थे. रुकावट के लिए खेद है। रुकावट के लिए खेद खेद है. बट अभी कोई खेद नहीं है. नहीं अभी तो रुकावट ही नहीं है तो खेद कहाँ से हो गया। So anyways, that's how my journey was. And in pandemic, I said कि एक चीज़ है कि जो क्रिएटिव माइंड है वो कभी भी शांत नहीं बैठ सकता और बैठना भी नहीं चाहिए उसको. एंड वन शुड बी ऑलवेज क्रिएटिव. जो भी आप करना चाहते हो. आजकल मैं वो गुड टाइम्स वो चैनल देखती हूँ, TLC देखती हूँ. आई गो इन द किचन बिकॉज सी यू नो एक एक जनरेशन्स आते हैं. सी मैं जब भी बहू बन के घर पे आई थी तभी हम लोग घर पे पाव भाजी बनाते थे तो भी उसको बहुत ग्लोरीफाइड किया जाता था. आजकल हमारी बहुएं आ गई है, नाउ शी प्रिपेयर्स समथिंग, सम न्यू सूप है, वो कुछ नए नए आइटम्स है, वो सब वो बना देती है. ऑफकोर्स यूट्यूब एंड ऑल दिस चैनल्स एंड ये वो, बट इट्स नाइस. मतलब वन शुड एक्सेप्ट द चेंज. ये चेंज एक नेचर वाली बात है. हम भी कभी काले बाल वाले थे, अभी मैं भी सफ़ेद हूँ, लेकिन मैं करती हूँ डाई वगैरह. जाना पड़ता है बाहर. अभी dye करना एवोकाडो पड़ता है. खाने को मिलते हैं, गुआकामोली खाने के लिए हाँ, मिलता है। सब. अब जो लाते हैं खाते हैं और अप्रिशिएट करने का. वो चेंज ये सृष्टि का नियम है एंड वन हैज़ टू एक्सेप्ट दैट नियम. जो बच्चा अभी जन्मा है वो एक दिन बूढ़ा होने वाला है. सो वन हैज़ टू एक्सेप्ट दिस एंड गो अहेड. एंड नाउ आई एम रेडी फॉर माई 3rd इनिंग. और मेरी अभी 6 months when Payal had come, that time I was talking to the channel and आजकल मेल्स बहुत चलते हैं, तुम्हें भी पता है. बस मेल भेजो, मेल वहाँ से आ रहा है, मेल भेजो. 6 महीने से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ. इतनी करियर होने के बाद भी हमारा स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है. ये बात तो हमारी इंडस्ट्री का उसूल है. अदरवाइज रमेश सिप्पी साहब ने शोले बनाने के बाद उनकी आगे की फिल्में फ्लॉप नहीं होती थी. ईमेल भेजो, फीमेल का जवाब नहीं आता। नहीं, ईमेल नहीं. पहले तो ऐसे होता था एक हैंडशेक एंड डन एंड यू आर आउट विथ द शो इन योर हैंड. सो अभी वो ज़माना नहीं रहा है. बट एनीवेज देखा, आवाज़ बैठ गई, 2 लोग बैठे हैं. Premraj, we have set one more record today. In all the 55 episodes we have had, this is probably the longest answer we have had to one question. मैम आपने कभी दैट इज आपने कभी रेडियो ट्राई क्यों नहीं किया? You would have been an amazing radio personality. आप बोर हो गए, बट क्या करूं, मेरी कहानी ही लंबी है. मेरा स्ट्रगल भी लंबा है. Thank you for sharing your life's journey. थैंक यू सो मच. You mentioned you have been married 32 years ago and it took you 1 year after marriage to get a kid. In the present generation, बच्चा होने के बाद शादी करते हैं. वो हुआ तो भी अच्छा है. आजकल का ज़माना तो स्टेइंग टुगेदर का ही है. Yes. एक थैंक्स देना चाहूँगी. एक तो अभिजीत पाटिल को बिकॉज ही गॉट मी ओवर हियर. सेकंड थैंक्स टू पायल हु हैड कम टू माय प्लेस एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड टू नो ऑल ऑफ यू बिकॉज एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, एक इतनी अच्छी बुक मैंने पढ़ी इन दो दिनों में. एंड जो जैसे इन्होंने कहा कि हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, मैंने भी ज़िंदगी में यही सीखा है कि भाई हार्ड वर्क को कोई पर्याय नहीं है. सो ब्लूम के लिए जो पायल ने किया है, जो पायल की स्टोरी है, वो मुझे इतनी अच्छी लगी है
कि उसको जो स्पीच डिलीवर करना था उसको करने को मौका नहीं मिला. शी डिडंट गेट दैट प्लेटफॉर्म. सो उसने खुद ने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया जहाँ पर शी कोलैबोरेटेड विद सो मेनी एमिनेंट पीपल. And today we are here and we are all blooming. Thank you so much. Thank you.